मेरे बच्चे घर में भी लगी सारा दिन रहते, इतना बाहर का कर लेती, इतना अपना काम कर लेती। श्रीनगर एडमिशन ले रखा था, सारा काम करती थी, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। अब तो तैयारी कर रही थी थोड़े दिन में जाने के लिए, क्या करूँ बता। अब तो चली गई, कैसे जा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इस वक्त हम यहाँ उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हैं, जहाँ पर 24 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की खो-खो खिलाड़ी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस समय ये वही जगह है जहाँ पर उनकी लाश बरामद हुई थी। परिवार स्तब्ध है। उनका कहना है कि किसी प्रकार का कोई मनमुटाव या किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, और जो लड़की है वो अपना एक उज्जवल भविष्य की ओर देख रही थी, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। और इस तरह की घटना यहाँ दिन दहाड़े, क्योंकि ये घटना दिन में हुई, तो ऐसा होना यहाँ पे सभी के लिए बहुत हैरानी कर देने वाला है। The alleged murder of a national level Kho-Kho player belonging to the Dalit community shook the nation a couple of days ago. The case garnered headlines and several politicians demanded justice for the girl. The 24-year-old victim Friday left home to go to a local private school to submit her resume for the job of a sports teacher. While coming back, she used the same shortcut path near the railway tracks behind her house that she always took. Except for this time, she did not reach home alive. Her body was found on 10th September near the railway track, hardly a stone's throw away from her house. Her hair was scattered, her nose was bleeding, and her own dupatta was strangled around her neck. The condition of her body made her family members think she must have been raped and killed. However, the Bijnor police ruled out the claim of rape, citing a medical report. 11:40 पे मेरी बहन घर से निकली तैयार होके रिज्यूम लगाने के लिए डीडीपीएस में, लेकिन डीडीपीएस ना जाके वो जीजीआईसी अपने कॉलेज चली गई। वहाँ से मैडम से बातचीत करके 1:30 बजे वहाँ से आई, वो बैठ के मैडम के पास बातचीत करके स्टाफ से अपने 1:30 बजे के बाद वो निकली वहाँ से। कुछ टाइम लगा थोड़ा आने में रिक्शा से यहाँ तक। उसके बाद बस घर की 2 कदम की दूरी पे उसको मार के डाल दिया, गला घोट के, बड़ी बेरहमी से मारा उसको। उसने बचने की बहुत कोशिश की, नहीं बच पाई है। बहुत हाथापाई हुई होगी, बाल खुले हुए, बिखरे हुए, थैला जबरदस्ती छीन के फेंका गया दूर, बैग कहीं पड़ा खुला हुआ, बैग में से भी सामान टटोला होगा क्योंकि बैग खुला था। 1-2 कागज, आधार कार्ड सब फैले हुए मिले उसके। The young woman was a national level Kho-Kho player who used to keenly participate in all sports. She had participated in the National Kho-Kho Championship and multiple state level championships. Her body was found around 2 p.m., but the police and railway police could not decide under whose jurisdiction the matter falls. Eventually, an FIR was registered at 10 p.m. on 10th September. पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। अभी बोल रही है जल्द इंसाफ मिलेगा, दिन रात लगी हुई है टीम। लेकिन केस दर्ज होने में देरी हुई थी। बस केस दर्ज होने में देरी हुई थी, जैसे ही केस दर्ज हुआ तो एक्शन तुरंत लिया गया। The family was shocked about how their daughter was killed near their own house at a spot that is usually bustling with people passing through. उसे मारने में ज़्यादा टाइम नहीं लिया ना, उन लोगों ने तुरंत मार ही दिया है उसको। ये रास्ता ऐसा है कि हर 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में कोई ना कोई यहाँ से गुजरता ही है। The police took 4 days to allegedly solve the case. They have arrested a 23-year-old man named Shehzad, who used to work as a daily wager near the railway tracks. According to the police, the convict was under the influence of narcotic substances. The police has claimed that in his statement, he accepted that he attacked the girl with the intention of rape, but as she screamed, he put her dupatta and a rope around her neck and strangled her. पल्लेदारी के काम से ही आया था, अक्सर आता है, हैबिचुअल कमर है एवं ऑफेंडर भी है। दूसरा, इस लड़की को जाते समय देखा था, आते समय उसके तात्कालिक वैचारिक उद्वेग के कारण एक घटना कारित की गई। उसके गले में जो चुन्नी थी और एक रस्सी थी, उसको गले में जो स्लीपर के बीच में जो गलीज टाइप के थे, गलरी टाइप के थे, उसमें ले गया, खींचा,
लड़की उस दौरान टेलीफोन से वार्ता कर रही थी अपनी किसी दोस्त से, टेलीफोन गिर गया। कुछ लोगों के आहट हुई आने के भी, जो भयभीत होने के कारण घटना कारित नहीं हुई। किसी प्रकार का व्यभिचार, वहाँ से भागा मोबाइल फ़ोन ले करके, क्योंकि उस पर कॉल आ रही थी, बात हो रही थी। उसके फ्रेंड ने, जिससे बबली की बात हो रही थी, उसने स्थानीय लोगों को सूचना दिया, अपने दोस्त को, फिर आकर के देखा लोगों ने, फिर पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद घटनास्थल निरीक्षण स्थानीय पुलिस बल, GRT, स्वाट, सर्विलांस यूनिट, SPCT, क्षेत्राधिकारी मेरे द्वारा किया गया। The man has been arrested under IPC Section 302, 201, 376 and 511 for murder, attempt to rape and destruction of evidence. However, the 24-year-old girl's family looks towards an uncertain future. Her father works as a daily wager and earns from rupees 8 to 10,000 per month. The girl, her family says, would contribute financially and help her parents by giving tuition classes. This is Unnati Sharma reporting with Suraj Singh Bisht from Bijnor, Uttar Pradesh.